We showed you at the start of the show that learning about hygiene can be fun. You can sing songs or recite dialogues while washing your hands. You can read comic books or have puppets teach you about कीटाणु. The important thing is to learn about hygiene. तो बनेगा स्वस्थ इंडिया ने जो हाइजीन करिकुलम की पहल शुरू की थी 10 साल पहले और जो तब से लाखों स्कूलों में पहुंच चुका है, उसे देश के सारे स्कूलों तक हम कैसे पहुंचाएं? और इसी बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजू सचदेवा, वो प्रिंसिपल है टैगोर स्कूल के, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर कोमल गोस्वामी चीफ ऑफ पार्टी प्लान के. तो आई थिंक सबसे पहले कैन वी गो अक्रॉस टू डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन. थैंक यू सो मच डॉक्टर सौम्या फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. The first thing, we've been talking about climate change, and as climate change continues to affect various aspects of our environment and health, what are the specific impacts that we are seeing on children globally? And Dr. Soumya, I'm asking you this क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम इसको, इन impacts को कैसे mitigate कर सकते हैं? Thank you very much for this show and this question, and for shining a spotlight on the impact of climate change, which is often invisible to most people. We do see from time to time the natural disasters which are occurring with increasing frequency, but there are also slow onset changes which are less dramatic and less visible, but yet have a big influence on people's lives. So the impact on children globally is huge, and what is worrying is because they are the actually future generation who are going to face all of the impacts of all the changes, the anthropogenic effects that human beings have inflicted on this environment, and which has resulted in the acceleration of global warming. And that in turn has had multiple cascading effects. So if you think about what children, are facing today and can be expected to face, of course, there are the big disasters which happen, so you have a flood, or you have a cyclone, or you have a forest fire. These obviously displace people from their homes for either short or long periods of time. People have to move away. Maybe they're living in some kind of temporary camps. So education is affected, nutrition is affected, family bonds are affected, often families are separated, and all this leads to physical and mental stress on the child. Dr. Swaminathan, hygiene is a crucial aspect of public health, especially for children. Could you elaborate on the importance of hygiene for children's health and development? Yes. So, it has been recognized for a long time now that not only is nutrition and good food important for mental and physical growth and development, but also the enabling factors. And the enabling factors basically are clean water, safe sanitation, good housing, and obviously a good environment for the child to grow up in. Particularly the first 1,000 days of life are very important. And so the child begins its journey in this world when it is still in the womb of the mother. And so the environment that it gets from the mother, is the mother well nourished? Is the mother under stress? Does the mother have infections? Does the mother have access, to nutritious food? All of this starts impacting the growth of the child. And then once the child is born, the first 2 years are very critical in terms of both brain growth and physical growth. And so that's where we actually have a problem. We have stunting in our country, which begins, at or before birth and continues after birth. So the child never attains its full potential. So the genetic potential, in order to really achieve that and to have an economy which is thriving, you need human capital. And human capital is basically children's growth. So I'm saying this because water, sanitation are extremely important determinants of a child's growth and development, whether it's at home, whether it's in the school, whether it's in the community settings. And it's really wonderful that our government has such a strong emphasis on sanitation, through the Swachh Bharat Abhiyan and now through the Jal Jeevan program, trying to bring safe water and safe sanitation to every household and community. I think schools, creches, Anganwadis, these are also very important places where children spend a significant portion of their day. And therefore, it's important that every such facility where children are spending time must have good sanitation. डॉक्टर स्वामीनाथन, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ हमारे साथ बच्चे हैं.
So with your experience, could you share some effective strategies जो help कर सकते हैं इन बच्चों को to spread awareness ना सिर्फ अपने लिए पर इनके communities में भी, खासकर hygiene को लेकर? तो एक्चुअली बच्चों में ही हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली जिस तरह से वो बदल सकते हैं चीज़ों को, चाहे माँ बाप ना भी समझे, अगर बच्चे समझ जाते हैं तो हमने ये देखा है तो कि चाहे वो तंबाकू हो, जो बच्चे समझते हैं वो घर जाके अपने पिताजी को कहते हैं कि आपको तंबाकू पीने से मेरे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, सबके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, तो घर के अंदर तंबाकू मत यूज करिए। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। बट बच्चों के लिए मेरे ख्याल आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट से उनको इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है, और किसको हम मतलब बिलीव करें और किसकी बात माने। तो जरूरी ये है कि अपने आप को अगर तंदुरुस्त रखना है, और ये भी फिजिकल और मेंटल दोनों, मानसिक तंदुरुस्ता भी जरूरी है, इसके लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हेल्दी फूड। और आजकल बच्चों में एक ऑब्सेशन हो गया है बाहर से खरीद के खाना खाना, या जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उसको खाना, और जो घर पे माँ बनाती हैं खाना, जो दाल चावल रोटी अंडा और सब्जी वगैरह, उसको छोड़ के बाहर का वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेज फूड्स लेके खा लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत खराब है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और आगे जाके डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह होने की बहुत संभावना ज्यादा है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी बीपी और शुगर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने खाने पे आप जरूर अटेंशन दीजिए, और तंदुरुस्त खाना जो फ्रेश हो, जो लोकल हो, और जो घर पे बनाया हो, उसको ज्यादातर खाइए। कभी ना कभी बाहर से आप लेके खा सकते हैं, बट रोज रोज उसकी आदत मत बनाइए, बहुत जरूरी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। वैसे तो बच्चे खेलते कूदते ही हैं, बट आजकल ज्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो जरूर 1-2 घंटे बाहर एक्सरसाइज में आपका जैसे भी जो भी पसंद हो, चाहे आप जॉगिंग करें या साइकिल करें या बास्केटबॉल खेलें या आप तैरने जाएं, जो पसंद है, बट वो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बिना जो है मोटापन हो जाता है, और मोटेपन से काफी बीमारियां। और तीसरा, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। आजकल डेंगू बीमारी बढ़ रही है, जैसे बारिश होती है वैसे डेंगू की बीमारी। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है हर जगह कि मच्छरें अच्छी तरह से वहां पे ब्रीड कर लेती हैं। आप अपने घर में अगर जाके अपने गली में, अपने रोड में, अपने घर के अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे देखें कि कहाँ कहाँ पानी, स्टैग्नेंट वाटर है, और उसको अगर हम हटा दें, और अगर सब लोग करें इसको, तो वो डेंगू का जो मच्छर है वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। वो डेंगू की हटा सकते हैं। ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, करके दिखाया है कुछ शहरों ने कुछ गांव ने। तो इसके लिए एक कम्युनिटी मूवमेंट चाहिए, और बच्चे अगर ऐसा मूवमेंट चलाएं अपने स्कूल में भी और घर में भी, तो हम लोग डेंगू से और जो मच्छर से बीमारियां फैलती हैं उससे बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्वामीनाथन। अब हम चलते हैं हमारी यहाँ टैगोर स्कूल की प्रिंसिपल मैम की तरफ। मैम, वेलकम टू द शो। Thank you so much, आयुष्मान। तो अंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे अमल करते हैं ये करिकुलम में अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में? एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं दे कम एट वेरी टेंडर एज, 3+ से लेकर अराउंड 10 ईयर्स तक के बच्चे हमारे पास होते हैं। एंड ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। एंड दे कम फ्रॉम नॉट वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, देयर पेरेंट्स आर नॉट very well educated, 99.9% they are illiterate. So this is my responsibility that along with the curriculum, hygiene को भी और बाकी जो भी social issues है, not only hygiene, say no to single use plastic, we work on many things. These all things are included in our curriculum. और इन्हें इस एज में ही सिखाया जाता है कि कैसे अपने इवन वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, वो भी हमें करना पड़ता है फॉर द नर्सरी स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर टू यंग टू यूज़ द फ्लश। मैं इसे अपना ड्यूटी समझती हूँ, बिकॉज दे आर एम्बेसडर्स जो जाकर अपने फैमिलीज़ में ये हमारा जो भी हमारा एक मैसेज है अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को देते हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और करिकुलम में इंक्लूड किया गया है बिकॉज
एक तो सब कुछ इन्हें प्रोवाइड किया गया है इन द वॉशरूम्स, द हैंड वॉश आर देयर, देन टॉवल्स आर देयर, देन दैट ड्राइंग मशीन इज़ देयर, हैंड ड्रायर इज़ देयर, ताकि जो ये सीख कर जाएँ इस मैसेज को अपने घर तक लेके जाए। और ये जो हाइजीन लेकर हम चल रहे हैं, हाइजीन प्रोजेक्ट दैट बनेगा स्वस्थ इंडिया, बिकॉज हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस। और मुझे लगता है ये हैबिट इनके लिए, इनकी हैबिट बन जाना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड थैंक यू, जब आप इस चीज़ को ब्रांड करेंगे, आप इस चीज़ को मैसेज बच्चों को देंगे, तो दे आर डेफिनेटली ये मैसेज इनके घर तक पहुँचेगा और हाइजीन इनकी हैबिट में आ जाएगा। इट विल बी देयर इन देयर प्रैक्टिस। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि पैनल में सिर्फ महिलाएं हैं और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पर। इनफैक्ट ऑडियंस में भी जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक ऑल बॉय स्कूल से हूँ, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। आई हैव मोर देन 540 गर्ल्स इन माई स्कूल। बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, अपने कम्युनिटीज़, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिंक बहुत ज़रूरी है। और पिछले 10 सालों से जो हमारा एडिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन है, पहल यही रही है कि हम बच्चों को भी स्टार्ट देम यंग। तो अब करिकुलम की बात मैं आयुष्मान कोमल से इनफैक्ट पूछना चाहती हूँ। अंजू जी, आप करिकुलम की जो बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में आजकल इतनी सोशल मीडिया, एज अ मदर आई फेस इट, सोशल मीडिया है, बच्चे रील्स देखते हैं या टीवी है, सो मच डिस्ट्रैक्शन। आप करिकुलम को कैसे इंगेज रखते कि बच्चे उसमें इंगेज रहे? हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए? थैंक यू अंबिका, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज वी स्टार्टेड 10 years बैक। वो बच्चा जो कि 10 साल पहले हाइजीन करिकुलम पढ़ चुका है, वो आज kind of graduate हो चुका है, that बच्चा is now not a बच्चा anymore, he's become, or he or she has become into an adolescent। तो वो जो मैसेज है जो हम 10 साल से बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं, वो आज बच्चे बाहर लेके जा रहे हैं। वो बच्चे जो कि आप सोशल मीडिया चलाना जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पहले नहीं था, पहले वो करिकुलम था और करिकुलम ही सब कुछ था। हम उस एरा से हैं, मैं, आयुष्मान, आप और मैम, जो बुक्स पे, मतलब बुक्स हमारे लिए सब कुछ होती थी। अब धीरे धीरे इंटरनेट आ गया है, करिकुलम ने उस हिसाब से इवॉल्व किया है। आज हम यहाँ पे, हम कुछ दिन पहले से भी बात कर रहे थे, हमने गेम्स बनाए हैं, हमने वो मैसेजेस बनाए हैं। एंड करिकुलम सिर्फ एक करिकुलम नहीं रह गया है, उसकी डिजिटाइजेशन, हमने वो फिजिकल एक हाइजीन प्ले पार्क बनाया है जो कि आरागोंडा में है, जो कि गोरखपुर में है। अभी नेक्स्ट हम वो उत्तराखंड में बनाने वाले हैं। वो हाइजीन प्ले पार्क का काम ही यही है कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं या जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल की लिमिटेशन तक नहीं रहे, वो प्रैक्टिकली बच्चे कर पाए। हम इतना मैसेज करते हैं कि हम बाहर क्या लेके जा रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन एट इलनेस, हाइजीन एट नेबरहुड, हाइजीन एट कम्युनिटी। सो आई थिंक as the time has evolved, curriculum has also evolved। वो एक बुक पहले वीडियोस बनी, 35 वीडियोस बनी, 35 चैप्टर्स है करिकुलम के, वो 35 वीडियो बने, फिर वो 35 वीडियो एक गेम बना, फिर वो एक गेम, अब हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं। फिर वो चैटबॉट सिर्फ हमारे डिवाइसेस तक नहीं रहा, वो आगे प्ले पार्क की तरह बन के आया। तो आई थिंक इवॉल्व करते जा रहे हैं। और हमारे जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, मैं उनको बोलूँगी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इन हाइजीन करिकुलम, वो अपना मैसेज साथ में लेते जा रहे हैं। वो हम एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं दैट इफ यू हैव टच्ड 1 life, दैट मीन्स वी आर टचिंग इनटू 3 lives, राइट? 3x। सो आई थिंक वो आगे कंटिन्यूड है। और वही बच्चे जो आई थिंक ग्रेजुएट हो गए हैं, दे आर द यूथ एम्बेसडर्स हु आर टेकिंग दिस मैसेज फॉरवर्ड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्रू द बिगिनिंग, शुरू से जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ इज कनेक्टेड, वेदर इट्स द क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से कैसे हो, पानी नहीं होगा तो हम हाथ कैसे धोएंगे। आई थिंक दैट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बच्चे जो आगे ये लेके जाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। अंजू मैम ने जैसे बोला कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो प्रोबेबली 99% इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो इनके पास 2 तरीके हैं अवेयर करने के। प्रीवियस जनरेशन को भी अवेयर करना है और आने वाली जनरेशन को भी अवेयर करना है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास। दैट्स व्हाई ये सेड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, क्योंकि हम और वेरी फ्रीक्वेंटली वी ऑर्गेनाइज PTMs। अभी पीछे हमने एक ऑर्गेनाइज किया था मीटअप with their mothers and elder sisters, जिसमें हमने मेन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे बात की थी। सो ताकि अभी से इनको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि कैसे इन्हें हाइजीनिकली आगे इस चीज़ को हैंडल करना है। सेम थिंग। आप अपने माँ बाप को सिखाते हो कुछ? ओह वाओ, क्लियरली। ये देखो, क्या सिखाते हो? कोई एक बताओ जो आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो भी मैम ने बताया। तो आप कोई एक चीज़ बी प्रिसाइज कि आपने क्या बताया जाकर? सर, मैं जो भी जैसे स्कूल में मुझे प्रिंसिपल मैम बताती हैं या मेरी मैम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, तो वो मैं घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को और मेरी जो एक छोटी सी बहन है मैं उसे भी बता देती हूँ।
चाहे उसे समझ आए ही ना फिर भी। That's lovely. आपकी छोटी बहन कितने साल की है? सर 5 years। वेरी गुड। आई थिंक वी शुड Thank you, ऑल गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज क्योंकि वो 5 साल की लड़की के लिए भी शी इज Yeah. टीचिंग हर यंगर सिस्टर। हाँ, अब आप क्या बोलना चाहती हैं बताइए? सर जो मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम चाहे मेरी मैम जो सफाई के बारे में बताती हैं, और मेरे माँ बाप जैसे कोई लोग होते हैं ना खाना बनाते हैं आटा गूंथते हैं तो वो लोग गंदे हाथ से ही गूंथते हैं, वो लोग मैम हमें वो लोग सिखाती हैं, वो हम अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि मम्मी ऐसे करो, और वो क्या कहते हैं सफाई के मम्मी हैंड वॉश करके ही आटा गूंधा करो और सब्जी हैंड वॉश काट के ही करा करो मैम मम्मी, और हम लोग को खाना भी हैंड वॉश करके ही दिया करो। मम्मा गुस्सा तो नहीं करती? मम्मा सुनती है, मैं भी वही पूछने सुन वाली लेती थी। गुस्सा तो नहीं करती ना मम्मी कि क्यों No, टोक रहे हो? गुड। वेरी गुड। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम आस्था पवार है। तो जो चीज़ें हमें स्कूल में बताई जाती है वाटर सेविंग, एनर्जी सेविंग, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया जाता है वो हम अपने घर में जाके बताते हैं कि एनर्जी सेविंग करनी है और जो सोलर पैनल है उनका यूज करना है। जो वाटर टैप है तो हमारे स्कूल में पुश वाले वाटर लगे हैं जिनसे मतलब जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, मतलब उसकी सेविंग होती है ना। आज तक ऐसा होता है बच्चे ना कई बार ना नल खुला करके छोड़ जाते थे, वो पानी गिरता रहता था, तो उससे मतलब अब जो पुश वाले नल हैं उससे तब वाटर सेविंग होती है। और जो वेस्ट मैनेजमेंट था हमारे स्कूल में, तो बच्चे के ऐसा होता है कि सारा कूड़ा इकट्ठा एक साथ रख देते थे, जिसे जानवर बंदर वगैरह आते थे तो उस प्लास्टिक को भी खा जाते थे। तो हमारे स्कूल में होता है कि जो गीला कूड़ा है उसे अलग रखा जाता है, सूखा कूड़ा अलग रखा जाता है, और जो प्लास्टिक होती है वो इको ब्रिक बनाई जाती है जिसे हम अपने घर में भी करते हैं और अपने मम्मी पापा तक को बताते हैं और वो ये चीज़ें करते हैं और अपने आसपास वालों को भी बताते हैं। थैंक यू सर। Very बिग good. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द चिल्ड्रन। कोमल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रवि हमें बता रहे थे हाइजिया गेम के बारे, कॉमिक्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे उन्होंने कहा हम इंटरेस्टिंग एप्स बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं आयुष्मान की गेमिंग। He said he's a gamer. So I now- used to be, not anymore. Okay, so she's going to test you on the Haija Aishman, game. this is a very simple game though, but very interesting. तो हमने ये लास्ट ईयर आई थिंक हमने बनाया था हाइजिया, एंड इसमें सो विल स्टार्ट प्लेइंग रेज्यूम। सो इफ यू कैन सी ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे बच्चा है जो और सारे के सारे जर्म्स इसके पास आ रहे हैं, मारूं इसको कैसे? अटैक आपने मारा। सो दिस इज लेवल 1, वेरी सिंपल बच्चों के लिए। इससे आप बच्चे को इधर उधर कर सकते हैं, यू कैन मूव द किड इन द डायरेक्शन दैट यू वांट, इनको मारना कैसे? and this is the Dettol shield. So if the germ will come closer, just click on this, yes, and yes. So as the level will increase, the speed of germs is going to increase, and you can move the kid, yes, and that's how exactly. That's the challenge. Oh yeah, that's cool. Yeah, and there are various levels. So this is the bomb. You have to. Oh no, you have to. Destroy the bomb? Destroy the Of bomb. course. Come here. Come at this side. Yeah. So this is the power up. You I did think that. आप शो कंटिन्यू करो, मैं ये खेलता हूँ। Just before we wrap, अंजू जी जाते जाते अगर हमें बता सके, क्या आपने बिहेवियर में आयुष्मान जो वी ऑल सीन पोस्ट कोविड, क्या आपने वो चेंज देखा है? बेसिक लेसन जो होता है क्या वो टफर हो गया है? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैं अभी बैठे यही सोच रही थी कि 10 साल पहले तक हमें वो स्वच्छता हाइजीन वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते थे, वी सेल्डम यूज़ दैट वर्ड। 2014 में जब स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके बाद से स्वच्छता शब्द इतना ज़्यादा डिक्शनरी में आ गया और हमारे स्कूल में और छोटे छोटे बच्चे भी ये वर्ड यूज़ करने लग गए स्वच्छता। और तभी से शायद उससे पहले तक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उससे पहले तक स्कूल्स में वॉश बेसिन पर हैंड वॉश नहीं दिए जाते थे, सोप रखना ये चीज़ें कोई मैंडेटरी नहीं थी। आफ्टर दैट इन 2016 व्हेन आई जॉइन सम स्कूल एज अ प्रिंसिपल, तो वहाँ जाके मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम हैंड वॉश लगवाए, हैंड वॉश दैट Stations और- हाँ, हैंड वॉश स्टेशन बनवाए वहाँ पर, और ये चीज़ें प्रैक्टिस में स्टार्ट करवाई। और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि आई वॉज वॉकिंग बाय, तो एक नर्सरी का बच्चा दूसरे बच्चे को हैंड वॉश सिखा रहा था, नर्सरी चाइल्ड, जस्ट 4 year old ही मस्ट बी, उसको ये बता रहा था कि देखो ऐसे हाथ धोते हैं। तो मुझे वही लगा कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल बिहेवियर चेंज, और यही चेंज हम चाहते हैं। हैंड वॉश इज़ इन देयर हैबिट। तो जब भी मिड डे मील आता है हमारे स्कूल में, मिड डे मील बच्चों को मिलता है, तो बिफोर दैट वी मेक क्लास टीचर मेक इट श्योर कि सब बच्चे हैंड वॉश हो या इनके पास सैनिटाइजर, दे कीप सैनिटाइजर बॉटल विद देम। Thank you so much, Anju ji. Thank you, Komal. And well, that was fun.